Hello students, again I am Dr. Rajneesh Kumar, Associate Professor in Noida Institute of Engineering and Technology, Greater Noida. So, in previous lecture we have discussed about metal hydride reducing agents like sodium boron hydrides and lithium aluminum hydrides. Along with this we also have discussion on the use of you can say platinum and nickel metal catalyst in the reduction of carbonyl compounds. So, those were very important. In the next reaction, as I told you that carbonyl group can provide either alkane or alcohol on reduction. So, when we were using lithium aluminum hydride and the sodium boron hydride, we are getting alcohol. Okay. The alcohol can also be produced by the reaction of carbonyl groups with the hydrogen in presence of metal catalyst, as I told you in the previous lecture. Okay. So, now in the next topic as per our syllabus we are having Clemmensen reduction. तो Clemmensen reduction भी बहुत important reaction है, commercially industry में अच्छी यूज होती है. But the point is कि जब हम Clemmensen reduction के लिए जाते हैं तो इसमें कि कार्बोनिल ग्रुप से, कार्बोनिल ग्रुप मीन्स एल्डिहाइड या कीटोन से हमको क्या मिलता है, हमको एल्केन मिलती है. ओके. तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन आई एम जस्ट सेइंग कि भैया Clemmensen reduction इज डिस्क्राइब एज ए रिडक्शन ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड टू एल्केन. कैसे होता है? द होल रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम. जिंक एमलगम मीन्स जिंक विथ मरकरी एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, the whole reaction is being done in acidic medium. So, for acidic medium what will we use? We will use concentrated hydrochloric acid. So, again I am repeating the most important punchline of that reaction, or you can say definition of that particular reaction. Okay. So, Clemmensen reduction is described as a reduction of ketone or aldehyde to alkane using zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में दैट इज वॉल्फ-किर्चनर रिएक्शन. ओके. वॉल्फ-किर्चनर रिएक्शन. तो वॉल्फ-किर्चनर रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम. ओके. अदर रिएजेंट कैन ऑल्सो बी चेंज बट द मीडियम विल बी बेसिक इन केस ऑफ वॉल्फ-किर्चनर रिएक्शन while it is in acidic in case of Clemmensen reduction. The original the point to be noted very important दोस्तों, the original Clemmensen reduction are particularly effective at reducing aryl alkyl ketones such as those formed in the Friedel-Crafts acylation reaction. So, we have understood Friedel-Crafts acylation reaction in the aromatic compounds. There is the addition of RCO group. So, because of that ketone will be formed and those ketones, those aryl ketones can be reduced by using Clemmensen reduction originally. Okay. With aliphatic or cyclic ketones, modified Clemmensen reductions conditions can be used using activated zinc dust in an anhydride solution of sodium chloride in diethyl ether or acetic anhydride, okay, which is much more effective. So, here you can see the example of Clemmensen reduction. You can see we are having a ketone. We can also have some aldehyde. Okay. We can also have some aldehyde like this. Okay. The same reaction conditions will be following for this also, concentrated HCl. Okay. And you can see this CO group is reduced into methylene group. Okay. Means the carbonyl oxygen is replaced by the addition of two different hydrogen atom. Okay. The same example you can see over here. Ketone will provide us alkane, aldehyde can also provide us alkane, okay, in the presence of zinc amalgam and HCl. Okay. अच्छा, वास्तव में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है देख पा रहे हैं आप. ये पूरी रिएक्शन जो चल रही है, अगर इसको बैलेंसिंग करने की बात करें, ठीक है, तो इसके साथ हमको H2O वाटर मॉलिक्यूल भी मिलता है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट रिएक्शन देन
then we are also getting water molecule along with alkane. Okay, I'm telling you this because it is important to know this. It will certainly help you in understanding of reaction mechanism. So carbonyl groups, either alcohol, aldehyde or ketone, when reacted with zinc amalgam in the presence of acidic reagents like concentrated HCl, we are getting alkane and a molecule of water. The carbonyl group is converted into the CS2 group. Okay. Oxygen is replaced by the addition of two different हाइड्रोजन एटम. सो अब इसी रिएक्शन पे अगर हम पहले बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल भी आ रहा है, ठीक है, तो टोटल एडिशन कितना हो रहा है, टोटल एडिशन कितना हो रहा है, 2 H यहाँ आ रहे हैं और 2 H यहाँ जुड़ रहे हैं, टोटल एडिशन कितना हो रहा है, प्लस 4 H का हो रहा है. गॉट इट. अब आप ये कहेंगे कि साहब 4 H कहाँ से आएंगे, 4 H कहाँ से आएंगे, ठीक है कि नहीं. तो इसके लिए मैकेनिज्म समझनी जरूरी है. हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ से आएंगे. अच्छा, जब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, कमिंग टू दिस, दो तरह की, मतलब एक्चुअली है क्या वास्तव में कि इसकी मैकेनिज्म अभी तक सही से अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है, येट नॉट फुली अंडरस्टूड, हमारे से नहीं, साइंटिस्ट अभी इसको समझ नहीं पाए हैं, ठीक है. तो दो तरह की रिएक्शन इसकी प्रपोज की जाती है, ठीक है. एक को हम बोलते हैं कार्बोनियोनिक मैकेनिज्म और दूसरे को हम बोलते हैं कार्बोनॉइड मैकेनिज्म. The carbonyl mechanism of reaction shows that the zinc attack directly to the protonated carbon. Okay, this is the most you can say acceptable possible mechanism. Okay, this is carbonyl, जहाँ पर जो क्या कहते हैं जो प्रोटोनेटेड कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप वाला, वो डायरेक्टली जिंक के द्वारा अटैक किया जाता है. द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज नेमिंग एज carbenoid mechanism. Okay, so while the carbenoid mechanism is a radical process and reduce the happening on zinc metal surface, the reduction takes place at the surface of zinc catalyst. In this reaction, alcohols are not postulated as intermediates because subjection of the corresponding alcohol to these same reaction condition does not lead to the alkane. So इसीलिए मैंने कहा कि this is the most most possible accepted reaction mechanism till now. Okay, yet work is going on establishing the reaction of Clemmensen reaction mechanism for the Clemmensen reaction. So we will talking about the first type of reaction mechanism which is most accepted till now. So these are the steps which will be there in reaction mechanism. In the first phase, formation of carbocation. How it is happening? Actually जिंक जो होता है ना, जिंक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है. गॉट इट. तो हम देख पाएंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होगा. तो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, इस तरह से है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुल करती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करती है. उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा. ओके, सो विल सी वन बाई वन. जब ये हमको कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा तो इस कार्बोनिल ग्रुप पे एज आई टोल्ड यू जिंक इज ए वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर. जिंक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है. तो वो वहाँ से हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बोनिल ग्रुप को देंगे, ठीक है. उसके बाद हम एडिशन ऑफ प्रोटॉन कराएंगे. विल सी इन द नेक्स्ट. हियर यू कैन सी. सो हियर यू कैन सी वी आर हैविंग कार्बोनिल ग्रुप्स. H प्लस इज देयर. H प्लस कहाँ से आया ये H प्लस? H प्लस आया कि एसिडिक कंडीशन से, जहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं. कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज किया, वहाँ से हमको H प्लस मिला. दैट H प्लस विल बी गोइंग टू द ऑक्सीजन. ओके, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये H प्लस इसके पास जाएगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज किए जाएंगे बॉन्ड बनाने में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में. तो यूटिलाइज कर लिए गए. उसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज के साथ रह नहीं सकता, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना. तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे. इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा और ये जो कार्बन है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो अभी कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें पोलर बॉन्ड होता है. तो वैसे भी
जो ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, कार्बन उससे कम होता है, तो ऑक्सीजन अपने पास भी पुल करके रखता है ना। तो एक मैकेनिज्म वो भी है कि जहाँ पर मैंने आपको भी बताया था कि इस तरह से चीज़ें होंगी, यहाँ चले जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एट दैट टाइम जिंक जो है, जिनके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऊपर दे दिए जाएंगे। तो वो चीज़ें वहाँ से आ रही थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो बन रहा है बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ H प्लस आयन विच कम्स फ्रॉम द एसिडिक रिएजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इन द फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट जब ये कार्बोकेटाइन बन गया उसके बाद एज आई टोल्ड यू जिंक इज ए वेरी गुड डोनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ओके किसको करेगा, इस कार्बन को करेगा, ठीक है कि नहीं। इस कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, ओके नेगेटिव चार्ज आया। अगली बार क्या हुआ देखिए, तो फिर से यहाँ पर यहीं पे सारा खेल है, 2H प्लस आए, ठीक है, ये भी कहाँ से आएंगे, वहीं HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl से आएंगे, ठीक है कि नहीं। 2H प्लस आए और उन्होंने सेम काम किया जो यहाँ पे एक H प्लस ने किया था, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 2H प्लस आए, गॉट इट, और कहाँ जुड़ गए, एक इस कार्बन पे जुड़ गया और एक इस ऑक्सीजन पे जुड़ गया, ओके। इन 2H प्लस में से एक इस कार्बन पे जुड़ा जो नेगेटिव चार्ज था और एक इस ऑक्सीजन पे जुड़ा। जब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा इस कार्बन के ऊपर तो इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज दूर हो गया, एज यू कैन सी ये H जुड़ा हुआ है यहाँ पर और एक H कहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा। तो यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ था ऑक्सीजन के ऊपर, वो यूटिलाइज किया गया है ना, वो यूटिलाइज कर लिया गया। तो OH2 आया और साथ में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। इन द नेक्स्ट स्टेप एज यू नो दैट इनस्टेबिलिटी आ गई यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड्स लेके ये वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो गया, निकल गया एंड वी आर गेटिंग अगेन ए कार्बोकेटाइन। यहाँ पर हमको दोबारा कार्बोकेटाइन मिला और ये जो हमने प्रोसेस यहाँ शुरू किया था वो देखिए आप, दोबारा से जिंक आया, इसने दोबारा से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, दोबारा से यहाँ पे हमको एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ कार्बन के ऊपर और दोबारा से एक H प्लस आया, ठीक है कि नहीं। कहाँ से आया H प्लस, अगेन इट विल बी गिवन बाई whom, HCl दोबारा से आया और आप देख पा रहे हैं लास्ट में हमको क्या मिल गई, एल्केन मिल गई, ओके। तो वेरी सिंपल रिएक्शन टू अंडरस्टैंड। आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। तो देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स है, इट माइट बी एन एल्डिहाइड और एक कीटोन। H प्लस इज कमिंग फ्रॉम द, कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग, सॉरी उल्टी लग गई है, इट इज कमिंग फ्रॉम HCl, यहाँ से आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो H प्लस आया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज किए गए, ओके बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसके बीच में बॉन्ड बन गया, H ऑक्सीजन बिकम पॉजिटिव चार्ज, ओके। इन द नेक्स्ट स्टेप द डबल बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन थे वो यूटिलाइज कर लिए गए, ऑक्सीजन ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, उस केस में हमको एक कार्बोकेटाइन मिला, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हुआ। इन द नेक्स्ट स्टेप जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है ये, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और किसको दिए, कार्बन को दिए, ठीक है कि नहीं। तो कार्बन को दिए, इलेक्ट्रॉन दिए, उसकी वजह से क्या हुआ, कार्बन नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब अगली बारी में ये वाला स्टेप प्लीज नोट डाउन, यहाँ पे जो H प्लस आया था ऐसे ही H प्लस दोबारा आएंगे और दोबारा ही HCl से आएंगे, लेकिन इस बार एक H प्लस नहीं आ रहा है, 2H प्लस आ रहे हैं, ये देखिए है ना। अब सवाल उठता है कि 2H प्लस का करोगे क्या आप, तो भैया अब हमारे पास दो चीज़ें करनी है हमें, एक तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको दूर करना है और दूसरा हमें दूसरी साइकिल चलानी है एक और, इन द सेम वे एज वी हैव डिड अर्लियर। तो एक H यहाँ चला गया इसके ऊपर और दूसरा वाला इस कार्बन के ऊपर चला गया। You can see that negative charged carbon atom is now neutralized by the addition of hydrogen and this OH is converted into OH2 plus, okay। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर तो उसको पसंद नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन ने क्या किया कि भैया मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन्स दे दो, मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स यहाँ से टूट गया और हमको एक वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। लेकिन जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया तो अगेन दैट कार्बन बिकम
पॉजिटिव चार्ज, गॉट इट। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हुआ इसने दोबारा आवाज़ लगाई तो जिंक फिर से दौड़ के आ गया, वो तो बहुत अच्छा दानदाता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। दोबारा जिंक आया इसने दोबारा इलेक्ट्रॉन्स दिए, अगेन दैट कार्बन बिकम्स नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज आया इसने फिर से आवाज़ लगाई तो H प्लस फिर से एक मौजूद था, वो दोबारा आया, उसने नेगेटिव चार्ज दूर किया एंड वी आर गेटिंग द एल्केन। तो आप देख पा रहे हैं टोटल कितने H प्लस यूज हो रहे हैं, 1 2 1, 1 और 2 3 एंड 4, तो टोटल 4 H प्लस इज बीइंग यूटिलाइज इन द रिएक्शन। ओके, तो ये पॉइंट समझने का है। टोटल 4 प्लस यूज हो रहे हैं। अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको इससे पहले वाली रिएक्शन में बताया था कि यहाँ पर H2O भी साथ में मिल रहा है। ओके, तो 2 H तो यहाँ आ रहे हैं और 2 H यहाँ आ रहे हैं। ओके, तो एज पर द रिएक्शन मैकेनिज्म जहाँ पे हम 4 H प्लस यूज कर रहे हैं, द वाटर मॉलिक्यूल शुड बी फॉर्म इन दिस रिएक्शन। ओके, 2 H यहाँ चले जाएंगे और 2 H वाटर मॉलिक्यूल के साथ चले जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ से निकल ही रहा है। क्लियर है? नाउ कमिंग टू द सिंथेटिक एप्लीकेशन। तो देख पा रहे हैं आप, दिस रिएक्शन हैज़ वाइडली यूज टू कन्वर्ट द कार्बोनिल ग्रुप इनटू द मिथाइलिन ग्रुप, मतलब CO ग्रुप को हम CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एनी ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन, हियर वी आर सीइंग द एग्जांपल ऑफ पेंटेनोन। तो दिस CO2 group you can see is now converted into the CH2 group. Carbonyl group is converted into the CH2 group. Okay, its important application in the preparation of polycyclic aromatics and the aromatic compounds containing unbranched sides hydrocarbon chain. This reaction also helps to reduce the aliphatic and mixed aliphatic aromatic carbonyl compounds. Okay, अच्छा एक चीज़ रह गई यहाँ पर, Zn। सो Zn क्या कर रहा है वास्तव में, Zn क्या कर रहा है वास्तव में, Zn इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वास्तव में, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। 2 यहाँ दिए और 2 यहाँ दिए, 4e माइनस। ओके, यहाँ पे दे रहा है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो 2 and 2, तो ये चीज़ एक्सपेक्ट रह गया था, इसको भी ध्यान से रख लेंगे आप लोग। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। फॉर एग्जांपल इसकी एप्लीकेशन भी बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग a molecule like this. हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और हम इसका रिडक्शन कराने जा रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, एमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सो बहुत आसान है रिप्लाई इसका, क्या बनेगा हमको मिल जाएगा CH3 लाइक दिस, ये मिल जाएगा हमको, आसान सा है ना। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि सपोज करो वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल लाइक दिस। हम यूज कर रहे हैं जिंक, एमलगम एंड HCl। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मिथाइलिन ग्रुप, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्या होगा, OH का क्या होगा, OH का क्या होगा। एक आंसर है कि OH जो है वो वैसे ही रहेगा। ओके, दूसरा आंसर है कि OH will be replaced by chlorine। ओके, सो पहला आंसर जो है कि OH वैसे ही रहेगा, ये गलत है। द सेकेंड आंसर where OH is replaced by the chlorine is absolutely true। सो हाउ इट इज हैपनिंग एक्चुअली, होगा क्या वास्तव में
ये जो OH है अगेन HCl इज देयर, ओके, HCl इज देयर, तो HCl इज अगेन प्रोवाइडिंग द H प्लस, ओके, तो H प्लस प्रोवाइड होगा और ये वाटर मॉलिक्यूल की तरह निकल जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा. सो दिस इट विल बी रिमूव्ड एज वाटर मॉलिक्यूल्स. पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कार्बन रह जाएगा, उस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा बाय द एडिशन ऑफ क्लोरीन. सो अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. So I am again coming to the point where we can discuss the reaction mechanism. So again now we can summarize this reaction. Okay. You can note it down. I will I am telling you the point. So Clemmensen reduction is what? Clemmensen reduction is the reduction of carbonyl groups. Carbonyl groups means either aldehyde or a ketone. Reduction of carbonyl groups into the alkene. Okay. In this reaction, the CO group is converted into the methylene group, that is CH2 group. Okay. How it is happening? It is happening in the presence of first, that is zinc amalgam, and second, concentrated HCl. Please note it that acidic medium is very very much important for this reaction, because if a concentrated HCl is not there, H plus formation is not taking place. If H plus formation is not taking place, this reaction will never being complete. Okay. So you can see the reaction, Clemmensen reduction on the slide, and I am again telling you the reaction is complete with the formation of one molecule of water also. Okay. तो यहीं पे हम समझ लेंगे जब हम कहते हैं the reaction is completed with the formation of one molecule of water also, then you can observe that there is a total addition of 4 hydrogen atom, okay, in the reaction. This 2 hydrogen atoms and this 2 hydrogen atom. Okay. So in the next part you can see if ketone is reduced, we are getting an alkane. If aldehyde is reduced, we are again getting an alcohol, sorry, an alkane. यहाँ पर plus 4H it will be added, and कौन दे रहा है इसको, ये HCl दे रहा है. Now again I am telling you the mechanism of Clemmensen reduction is not yet fully established by the scientist, although it believes that it may go through by two way. One is carbanionic mechanism and second is carbenoid mechanism. In carbonic mechanism, the reaction shows that the reaction attack directly to the protonated carbon. Okay. So it is the most accepted reaction mechanism where zinc directly attacked the protonated carbon. In the second way, where you can say radical process is going on in carbenoids mechanism. Okay. But this particular mechanism is well accepted, or you can say most accepted by the research community. Again you can see, as we followed the first mechanism, you can see in the first part formation of a carbocation, how H plus is coming from the concentrated HCl, it will go to the oxygen. How it is going to the oxygen? Because we know that this bond is always a very polar bond. Because of that polar nature of that bond, carbon is having slightly positive charge while oxygen is having slightly negative charge. So that because of that slightly negative charge on the oxygen, this H plus which is coming from the HCl is going towards the oxygen, and you can see because lone pair of electrons will be utilized to form a bond in between that H plus and the oxygen, this oxygen become positively charged, and you know the nature of oxygen is not a positive charge atom. So it will pull the electrons which is being shared in between the carbonyl carbon and the oxygen. So you can see by pulling those electrons, this carbon become positive charge, so formation of carbocation occur. At that time, okay, when a carbocation is being formed, zinc
comes directly in contact and it is a very good donor of the electrons. So, it will provide the electron to the carbonyl carbon, positive charge carbonyl carbon. You can see over there this zinc is converted into Zn plus 2 because of the giving up 2 electrons. Okay. So, zinc is converted into Zn plus 2. Now, this carbon become negative charge having lone pair of electron, again 2 H plus is giving by the concentrated HCl and 1 hydrogen going towards carbonyl carbon. Okay. 1 H plus is going towards here, 1 H plus is going towards hydroxyl group. Okay. So, you can see this carbon become neutral and this oxygen become again positively charged. The same reaction occur. So, what is happening after that? This bond will be broken and H 2 molecule will be released. Again we are having a carbocation and the same step which is taking place in the here is taking place over here. As soon as this carbon become positive charge, again zinc is there to donate its electron. Okay. It will donate such electrons, again the formation of negative charge carbon with a lone pair of electrons. In the next step, again H plus is provided by the HCl and we are getting our alkane molecules. So, total as we see addition of 4 H plus, okay, in the reaction. The synthetic application, as I told you, it is widely used to convert a carbonyl groups into the methylene groups, okay, in the preparation of alkanes. Again its important application is also there in the preparation of polycyclic aromatic and aromatic containing unbranched side hydrogen carbons. The reaction also helps to reduce the aliphatic and mixed aliphatic aromatic carbonyl compounds. So, again I hope कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. The important point कि HCl की प्रेजेंस में हो रही है, एसिडिक रिएजेंट की प्रेजेंस में हो रही है, हमको जिंक अमलगम चाहिए और हमको क्या देखना है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है इस पूरी रिएक्शन में. टोटल 4 H प्लस जो हैं वो यूटिलाइज किए जा रहे हैं और वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड से कॉन्सेंट्रेटेड HCl से आ रहे हैं. ओके. सो थैंक यू सो मच. Thank you so much. I hope you understood this reaction nicely. We will meet you in the next lecture. Thank you.